So we are starting our next life process, that is respiration. Previously we have discussed about the nutrition digestion process in human beings as well as in unicellular organisms. Now we are starting a connecting process. It means which is totally connected to the nutrition process. It is respiration. Firstly we will discuss about what are the products, what are the benefits of the digestion or nutrition. क्या क्या हमें benefits मिले थे. The first benefit is energy is provided. Okay. The second benefit, after the assimilation, when the food is transferred to each and every organ of our body, then repair of the body and growth of the body. After assimilation, जब हमारे food का assimilation हो गया था, then the food mixes with our blood and transferred to each and every body part. So this food is utilized by our body for getting energy, for the repair of the body and for the growth of the body. So the main thing, that is the definition comes from this food. When we take the oxygen, when we inhale the oxygen, this oxygen burns with our food. दिस ऑक्सीजन बर्न्स विद आवर फूड. ये ऑक्सीजन हमारी फूड के साथ मिक्स होती है, फिर उसको ऑक्सीडाइज करती है एंड रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 ATP एनर्जी. दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इट मीन सिंपल सी अगर हम इसकी डेफिनेशन निकालें बेटा, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ऑक्सीजन जुड़ रही है, या फिर हम कहें ना बर्निंग ऑफ फूड फॉर गेटिंग एनर्जी, इट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. इन दिस प्रोसेस टू बाई प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज्ड फ्रॉम आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाती है, एक्सेल हो जाती है, बिकॉज इट इज नॉट गुड, इट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. इफ इट इज एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडी, it can create the hindrance in the functioning of hemoglobin. And the another is water, which is released as water vapor from our nostrils. So these are the two byproducts, and the main thing is that is 38 ATP energy. Actually first we have to discuss about what is ATP. Okay, so as you all know that every word is given a हर एक चीज को इंडिकेट करने के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड दिया जाता है. द वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल दैट आवर करेंसी इज कॉल्ड रुपया. हमारे करेंसी जो है इंडिया की, उसको क्या बोलते हैं? रुपया. तो उसको एक टर्म दे दिया गया कि हम जब भी बात करेंगे तो रुपए बोलेंगे वहां पर. इसी तरीके से व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एनर्जी इन organisms, then we should use the word ATP. This is the energy currency of our body. This is the energy currency of the cell. ये सेल की एनर्जी करेंसी है. Now what is ATP? इसके साथ साथ दो चीज़ और बताऊंगी. There are 3 forms of energy in our body. First is ATP, that is adenosine triphosphate. Second is ADP, that is adenosine diphosphate, and the third one is PI or IP, that is known as inorganic phosphate. These are the 3 forms in which energy is present in our body, energy is formed in our body. So what are these 3 things? Single phosphate group in the inorganic condition, which stores a small amount of energy in our body, this is known as inorganic phosphate. You can say that you can indicate this inorganic phosphate as PI or IP. The second, when 2 phosphate group are there, it means the energy level is increased. This is called adenosine diphosphate. And when 3 phosphate groups are there, it means energy is ऑलमोस्ट इंक्रीज्ड. एनर्जी जितनी एक्सेस में हमारे अंदर एनर्जी स्टोर हो सकती है वो स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में. दिस इज कॉल्ड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. 1 phosphate group is there, then we can say that it is inorganic phosphate. 2 groups are there, 2 phosphate groups are there, then it is called adenosine diphosphate. And if 3 phosphate molecules are there, then this is called adenosine triphosphate. And in 1 molecule of ATP there is 30.4
आफ्टर प्रोसेसिंग, ये सारी प्रोसेसिंग के थ्रू जितनी एनर्जी रिलीज होती है हमारी, दैट इज 30.4 और 5 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी हमारी ये बनती है ऑक्सीडेशन के बाद, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एक एटीपी से। एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज टू कंडक्ट ईच एंड एवरी फंक्शन ऑफ आवर बॉडी। यही एनर्जी सारे कामों को, जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारी हो रही, इवन रेस्पिरेशन में भी ये एनर्जी हमारे काम आती है। इट मीन्स this is the main thing which is required to conduct all the metabolic reactions of our body. Now we will discuss that most of the time students are confused between two terms, breathing and respiration. दो टर्म्स में हमेशा कंफ्यूजन होता है कि भाई सेम है, वही है, एक ही चीज है, बट एक्चुअली इट इज नॉट, ऐसा नहीं है। अब क्या है भाई? ब्रीदिंग इज द inhale of oxygen and exhale of CO2। ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना, दैट इज ब्रीदिंग। वाइल ब्रीदिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का। एंड रेस्पिरेशन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड फॉर गेटिंग एनर्जी। रेस्पिरेशन क्या है? उस ऑक्सीजन को लेकर जो ब्रीदिंग ने कराई दी है, हमें प्रोवाइड कराई है जो ऑक्सीजन, उसको लेकर फूड को ऑक्सीडाइज करना और एनर्जी को रिलीज करना। इट इज सिंपली अ फिजिकल प्रोसेस, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ओनली लंग्स का, डायफ्राम का, हमारे नोज का इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस। ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, लिविंग की सेल में होने वाली केमिकल्स की हेल्प से होने वाली रिएक्शन है ये। इट इज अ वेरी सिंपल वन स्टेप प्रोसेस एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप प्रोसेस, कई स्टेप्स में होने वाली रिएक्शन है ये। इन दिस there is a involvement of only some organs, lungs, diaphragm, muscles of ribs, but there is a involvement of cell। यहाँ पर सेल इन्वॉल्व होती है, सेल ऑर्गेनाले, माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है इसको कंडक्ट कराने के लिए। सो देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। नाउ वी विल डिस्कस how many types of respiration are there, in which organism this is found, and how can we explain these type of respirations. One more thing I want to discuss here, ADP is present in our body as energy, and when the respiration occurs, then another inorganic phosphate joins with ATP and forms ATP। ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ता है, ये ऑलरेडी प्रेजेंट था हमारी बॉडी में, ये रेस्पिरेशन के थ्रू बना और जुड़कर एनर्जी बनती है किस फॉर्म में? ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं? ATP। तो ये होती है प्रोसेस जब हमारे अंदर क्या चल रहा हो? रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। और व्हेन वी नीड एनर्जी, जब हमें एनर्जी की नीड होती है, कोई रिक्वायरमेंट होती है, देन दिस स्टोर्ड ATP, ये जो स्टोर्ड ATP है, इट ब्रेक डाउन अगेन इनटू ADP एंड IP। ये फिर से वही प्रोसेस रिवर्स हो गई, वहां जुड़कर इन्होंने ATP बनाया था, लेकिन जब हमें रिक्वायरमेंट हुई कि एनर्जी की किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए, देन इट ब्रेक डाउन इनटू ADP एंड IP। दिस इज यूटिलाइज फॉर आवर मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए यूज हो जाएगी, एंड द रिमेनिंग वही ADP बचेगा। अगेन फिर वही प्रोसेस होगी, रेस्पिरेशन होगा, ATP बनेगी, जब रिक्वायरमेंट होगा तो यही ATP टूटेगी और हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगी। सो दीज टू रिएक्शंस आर गोइंग ऑन इन आवर बॉडी साइमल्टेनियसली। इन रेस्पिरेशन ATP is formed, when we require the energy, then this IP and ADP is formed, in which we use IP to conduct our metabolic energy. Now listen to me, respiration is of two types, aerobic and anaerobic। वर्ड से ही समझना है। एरोबिक, इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज मस्ट। ऑक्सीजन की प्रेजेंस क्या है? जरूरी है। ऑक्सीजन होगी तभी ये कंडक्ट होगा। इट मीन्स दोज ऑर्गन्स विच डू दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, दीज आर कॉल्ड एरोब्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एरोब्स, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। एंड those organism in which there is no involvement of oxygen, जहां पर ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है, दिस इज कॉल्ड anaerobic respiration and these organisms are called anaerobes।
In this category, fungi is included, and different type of bacteria are included, while in other organism there is a need of oxygen to burn the food or to oxidize the food for getting energy. Now I am drawing a graph for you, diagrammatic graph for you, which will help you to learn the whole process, that how the respiration occurs in our body in case of aerobic or in case of anaerobic. Now I am giving you a graphical representation of the whole process. Listen me carefully. Our digested food is glucose, that is C6H12O6. Okay, how many carbon numbers? 6 carbon numbers are there. Now this glucose changes into 2 molecules of pyruvic acid. ये जो ग्लूकोज है वो 2 molecules of pyruvic acid में टूटता है. The formula is CH3COCOOH. कार्बन नंबर इक्विवेलेंट करते हैं पहले. 1 2 3 3 carbon in 1 molecule. In 2 molecules 6 carbons are there. Okay, it means the carbon number are equivalent. Now a special thing, there is no need of oxygen presence or absence. ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो, इस रिएक्शन पर उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता. इट मीन्स द कंक्लूजन इज दैट दिस रिएक्शन इज सेम इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एज वेल एज इन एरोबिक में. एरोबिक एनारोबिक में दोनों में सेम होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस इसके लिए कोई भी मायने नहीं रखती. दिस रिएक्शन इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस. इस रिएक्शन को बेटा हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइको ग्लूकोज, लाइसिस ब्रेकडाउन. क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किस में हो रहा है? पायरुविक एसिड में. सो दिस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस एंड दिस रिएक्शन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. इस रिएक्शन को हम बोलते हैं दिस रिएक्शन अकर्स इन साइटोप्लाज्म. ओके, नाउ एक और स्पेसिफिक नाम देते हैं. एक्चुअल में इसको सीनियर क्लासेस में ज़्यादा डिटेल में बताया जाता है, मैं थोड़ा सिंपल बता देती हूँ आपको. EMP पाथवे. 3 डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको अलग अलग बताया था, मतलब एक ही प्रोसेस दी थी, तो तीनों के नाम को मिलाकर एक नया नाम बनाया गया इसके लिए, EMP पाथवे, एम्बडेन मेयरहोफ पार्नास पाथवे. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप of respiration. Now from this step respiration divides into 2 part. मतलब यहाँ से अब respiration 2 part में divide होगा, aerobic respiration और anaerobic. Okay. Now the first part. If oxygen is present, अगर oxygen present है तो reaction क्या होगी आपकी? aerobic respiration. ठीक है. कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी भाई. क्यों होगी भाई? क्योंकि इसलिए होगी, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. एनर्जी वहीं तो स्टोर होगी, तो एनर्जी ही तो बनाएगा ये, तो इसीलिए रिएक्शन कहाँ होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में. और सर हंस क्रैब ने इस प्रोसेस को पूरा पता किया था, इसीलिए उनके नाम पर इसको नाम दिया गया है क्रेब्स साइकिल. ओके, अब क्या होगा भाई? वो रिएक्शन मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दी. 6 मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज होंगे, 6 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज होंगे और 38 ATP आपकी बनेगी. तो ये होगा केस किसमें? जो एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, मतलब जिनमें ऑक्सीजन की नीड है और फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए. अब आते हैं दूसरे पार्ट पर. तो भाई दूसरे पार्ट में ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं चाहिए, मतलब ऑक्सीजन नहीं चाहिए. इट मीन्स ऑक्सीजन एब्सेंट. सो उसको हम क्या बोलेंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो गया. अब लेकिन भाई इस प्रोसेस को हम डिवाइड करने वाले हैं 2 पार्ट में. एक यीस्ट में या बैक्टीरिया में, ठीक है. दूसरी हमारी मसल सेल्स में. जब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस यीस्ट में हो रही है, तो इसको एक टर्म, एक नया नाम देते हैं जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ. पहले हम देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के, अगर ये किस में हो रहा है? यीस्ट में हो रहा है.
तो भाई प्रोडक्ट बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल एल्कोहल, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे आपके इथाइल में और एल्कोहल के, इथेनॉल के, 2 बनेंगे CO2 के, और बहुत माइन्यूट अमाउंट में एनर्जी भाई साहब रिलीज होगी। 2 इथाइल एल्कोहल, 2 CO2 और 2 ATP, क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अपने फंक्शंस को कंडक्ट करने के लिए। अब आपको पता होगा द प्रोसेस इन विच द शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? फर्मेंटेशन। हालांकि कुछ एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्पेसिफिक एंजाइम्स का, वो यहाँ हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो स्पेसिफिक एंजाइम स्किम में प्रेजेंट होते हैं जो एक्ट करते हैं, जाइमेज है, इन्वर्टेज है, कई सारे एंजाइम्स हैं। बट यहाँ पर हमें सिंपली क्या देखना है कि यीस्ट जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में पायरुविक एसिड जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसको किस में चेंज कर रहा है? अल्कोहल में, इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड में और ATP में। अब बात आती है भाई हमारी मसल सेल्स की। नॉर्मली हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, बट व्हेन वी आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ विग्रस एक्सरसाइज, जब हम बहुत विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी एनर्जी की डिमांड भी बहुत बढ़ जाती है। वी रिक्वायर एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कंडक्ट आवर रिएक्शन, टू गेट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कंडक्ट दीज रिएक्शन। सो दैट टाइम आवर सम मसल्स स्टार्ट टू डू द एनर्बिक रेस्पिरेशन। हमारी कुछ मसल जो हैं वो एनर्बिक रेस्पिरेशन करना शुरू कर देती हैं, एंड इन प्लेस ऑफ दीज प्रोडक्ट्स they start to produce lactic acid, लैक्टिक एसिड बनाती हैं और 2 ATP एनर्जी बनाती हैं। कोई CO2 रिलीज नहीं हो रहा है, बहुत लीस्ट अमाउंट में एनर्जी बनेगी, लैक्टिक एसिड बनेगा। फॉर्मूला इज CH3CHOOH, ये बनता है। अब भाई ये करता क्या है? अब ये जब हमारी बॉडी में बनेगा, इट मीन्स एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर मसल्स, इट स्टार्ट टू क्रिएट पेन इन आवर बॉडी। दिस पेन इज नोन एज मस्कुलर क्रैम्प। इस पेन को हम क्या नाम देंगे? मस्कुलर क्रैम्प। 1 मार्क क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, मस्कुलर क्रैम्प। अब क्या किया जाए इसके लिए भाई? इसके लिए किया जाए, इफ यू पुट योर दीज मसल्स, स्पेशली द हिंड लिम्ब मसल्स, इन द मॉडरेटली वार्म वाटर, अगर आप हल्का सा मसाज देते हैं उन मसल्स को मॉडरेटली वार्म वाटर में, तो इट नॉर्मल्स आवर ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल कर देता है। एंड दीज मसल्स ऑल्सो गेट द ऑक्सीजन बाय विच दे कैन स्टार्ट टू डू द एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड द सेम प्रोडक्ट्स आर स्टार्टेड टू फॉर्म. So this is the graphical representation of aerobic and anaerobic respiration, and it is very helpful to learn the whole process in different organisms. So this is enough for today. In my next class I will discuss about the process of respiration in plants. Till then, goodbye, have a beautiful day.